Hello, am I audible and visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Welcome to this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Welcome to this session, everybody. रोहित ने बहुत अच्छा फ्लैग लगाया इंडिया रशिया का है अपना स्क्रीन सेवर है ना। आवाज आ रही है? हाँ जी थैंक यू सर। ओके। अच्छा, ये मिथुन, आपको एक पीपीटी मैंने अभी मेल किया है, वो आप फाइल्स में डाल दीजिए जिससे कि सभी लोग उसको एक्सेस कर सकें। ओके सर। अच्छा, last time, if you remember, we have started with a few expressions of Russian, basically about numbers 1 to 10 and days of the week. तो फटाफट कोई मुझे एक बार फटाफट उसको बता दे, देन फिर we will go ahead. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है to identify between inanimate and animate. What does it exactly mean? Inanimate मतलब जो भी anything which is not living is inanimate. We generally ask a question, что, che, te, and o. The pronunciation is что for anything which is non-living, что. And we use another expression, what is this? Что это? What is this? Что это? ये क्या है? Likewise, we have another expression for living things which are called animate. It is used by an expression кто, ke, te, and o, кто. So we have two questions, basically что это and кто это. Russian language में जो एक सबसे important aspect है when we start making sentences in Russian, the first thing is that we must have basic knowledge of things and living things, non-living things and living things, so that we can differentiate between them and put a question, что это and кто это, so that the person can understand. The Russian case system, or падеж in Russian, starts with this basic question, что это and кто это. The case in which we deal with the question of что and кто is also known as the nominative case. Nominative case or the iminительный падеж. Iminительный падеж, which deals with the name of a living or a non-living thing. So basically इसको हम लोग आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे. We shall discover more facts about the nominative case in Russian, which is also known as iminительный падеж. So anyone can volunteer and tell me quickly about 1 to 10 and days of the week quickly, so that we can go ahead. Yes, sir. Tanish. Tanish, बोलिए. 1 Adin. to 10. Ajin. Whenever Ajin. A and E they collide, the sound is jin. G and then N. Jin. Ajin. Ajin. Dwo. Three. No. Chetri. नहीं. कोई और करना चाहता है ट्राई? जिसने अच्छे से पढ़ लिया है इसको और लेक्चर अच्छे से सुना था. सर नंबर रोहित बोलो. सर. हाँ, नंबर से शुरू कीजिए. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी भी क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है. सभी लोग ध्यान से, जब भी क्लासेस हम लोग करते हैं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही सेशंस की, उसके बाद थोड़ा सा इसको सुने ध्यान से, पढ़े भी ध्यान से, और एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान से सबसे पहले सुन लें आप. मान लीजिए कि अगर वॉइस क्लियर नहीं थी, मान लीजिए, उसके बाद भी हम लोग आप मुझसे पूछ सकते हैं. जब हम फेसबुक लाइव मिलेंगे उसमें भी पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारे जो है यूट्यूब पे वीडियोस हैं
उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अजिन, द्वा, त्री, चित्तीरे, प्याज, шесть, семь, восемь, девять, and the last one is GSH। नोल जो आपने बोला है उसको नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते हैं जीरो को, लेकिन आपने इसको पता किया है तो बहुत अच्छी बात है। नोल, NOL and soft sign is zero in Russian। ओके, जैसे कि आप अपने मोबाइल नंबर्स भी आज अपने मोबाइल नंबर्स को भी आप डिजिट वाइज, आज जो है आज का एक छोटा सा होमवर्क ये भी रहेगा कि अपने मोबाइल नंबर्स को डिजिट वाइज आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे से याद हो जाएगा ये। ठीक है ना? किसी का मोबाइल नंबर 00 बिल्कुल जीरो तो नहीं है 10 बार, है ना? चलो अच्छी बात है। और कोई ट्राई करना चाहता है एक बार फिर से, फिर हम लोग चले आगे। I जी would सर। like to try, हाँ, sir. सर। Anusha. हाँ, क्या नाम अजिन? बताया? अनीशा? Anusha, sir. Yeah, हाँ, Anusha. अनुषा बताइए। Ajin, Dva, Tri, Chitiri, Pyat, Shest, Sem, एक Vosem, बार 5 को फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं हम लोग? Pyat, प्याज, Pyat, प्याज, राइट। आगे बढ़िए। Shest, Sem, Vosem, Devyat, Desyat. सेम, सेम नहीं, सेम, वॉशिम, जेविच, जेविच नहीं, जेविच, जेसिच। Jevich, बहुत, हाँ, जेसिच, बहुत आराम से। ठीक है ना? बहुत अच्छा आपने पढ़ा, वेरी गुड। और भी Okay. लोगों ने भी बहुत अच्छा एफर्ट किया है। इट्स वेरी गुड टू सी दैट यू गाइस आर पुटिंग सो मच एफर्ट्स। अब फटाफट हम लोग एक बार डेज ऑफ द वीक पे चलते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। मिथुन, आपने डाल दिया है वो पीपीटी फाइल्स में? हाँ सर, वो चैट पे डाल दिया मैंने सर। डाल दिया, ठीक है। तो सब लोग उसको एक्सेस कर लीजिए प्लीज इन द मीन टाइम। Yes, sir, we have received. रिसीव ना, वेरी गुड। तो मंडे टू संडे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद से फिर हम लोग श्तोएता और क्षतोएता पे बात करेंगे आज। ठीक Sir, है? may I start the days हाँ। of week? हाँ, सलोनी बोलिए, डेज ऑफ द वीक। Понедельник, вторник, नहीं नहीं नहीं, पहला बोलिए फिर से, मंडे को क्या बोलते हैं? понедельник, पनिजेलनिक, вторник, फतो नहीं, вторник, वेरी गुड, तोरनिक। среда, व और तय जब मिल जाएगा, जब व और तय मिल जाते हैं तो फ की साउंड आती है, तोरनिक। okay, вторник, среда, четверг, четверг, пятница, 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 right, суббота, суббота, very good, суббота, воскресенье, 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 ठीक है? воскресенье, понедельник, понедельник। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье। ठीक है ना? понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота एंड воскресенье। ठीक है? इसको बोलना भी इसी तरीके से है और इसी सीक्वेंस में याद भी करना है इसको। तो आप मुझे बताइए सलोनी, सिवोदनिया का कोई जेन, सिवोदनिया का कोई जेन, ये मैंने पढ़ाया था ना पहले भी। आज कौन सा दिन है? सिवोदनिया का कोई जेन? श्रीदा। पूरा सेंटेंस बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए। सिवोदनिया का कोई जेन? сегодня среда, सिवोदनिया श्रद्धा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब Excuse me, एक sir. एक्सप्रेशन,
अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, आप थोड़ा रुक जाइए, पहले एक मैं और चीज सिखा दूं, फिर मैं क्वेश्चन लूंगा आपसे, ठीक है? या आपको जो भी कहना है 2 मिनट बाद मैं जरा एक चीज पढ़ा दूं। ओके सर। एक चीज हमें बहुत ध्यान से सुननी है जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे केस सिस्टम में जाने वाले हैं, आज से शुरू करेंगे। तो ये जब हम बात करते हैं कल, आज और कल की, मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ठीक है ना? तो अगर मैंने एक सवाल आपसे पूछा, सिवोदनिया का कोई जेम, इट मीन्स दैट व्हाट डे इज इट टुडे। अगर मुझे ये पूछना है कि कल कौन सा दिन था, या मुझे पूछना है कि कल कौन सा दिन होगा, इफ आई वांट टू आस्क यू व्हाट डे इट वुड बी टुमारो, एंड इफ आई वांट टू आस्क यू व्हाट डे इट वाज यस्टरडे, ठीक है ना? पीपल हु डोंट फॉलो हिंदी मच, आई एम आल्सो ट्राइंग टू add in the questions, add in the expressions in English. So the expression is for yesterday, okay? Včera, včera, v-č-e-r-a, včera, včera, b का कोई जेम, b, it is from the verb быть, быть, to be. včera, b का कोई जेम, कल कौन सा दिन था, what day it was yesterday. So the question would be včera का कोई जेम b, या और včera b का कोई जेम। ये हमने एक सवाल पूछा जिसका आंसर होगा včera byla वторник, कल ट्यूसडे था। उसी तरीके से अगर मुझे सवाल पूछना है कि कल कौन सा दिन होगा, what day it would be tomorrow, so I will ask the question какой день будет завтра. Вчера means yesterday, сегодня means today, and завтра means tomorrow. ठीक है, ये समझ में आया सबको? अब कोई भी मुझे ये चीज एक बार फिर से बताए, कोई What is yesterday? yesterday is včera, today is сегодня, and tomorrow is завтра. Okay, sir. ठीक है, you have to learn this by heart. So вчера был какой день? Какой день было вчера? सलोनी मुझे बताइए, Tornik. पूरा सेंटेंस बोला कीजिए आप लोग। अभी से अगर आदत डाल लोगे कि वही सिर्फ टू द पॉइंट बोलना है, तो फिर इट वोंट हेल्प यू। ट्राई टू मेक द फुल सेंटेंस। वчера была, हाँ, Včera Tornik. वчера What is the बीच, word, sir? हाँ, было, было, B-U-L-O, было, вчера было, I didn't get, sir. вчера было, Sir. вчера было, B-U-L-O, было, मतलब Boy. था। Yes. Boy. Okay, okay. वчера было Tornik. вторник, ठीक है। Okay, sir. какой день будет завтра? कौन सा दिन होगा कल, अब जो आने वाला दिन है? What day it would be tomorrow? какой день будет завтра? Завтра будет четверг. завтра будет четверг. Very good, excellent. ठीक है, so now we have got the idea of how the past, present and future would be used as far as the day is concerned. ठीक है ना? вчера было вторник, сегодня среда, а завтра будет какой день? четверг. समझ गए बात? вчера было вторник. अभी मैं एक सवाल पूछूंगा इसी के बेसिस पे, तो ध्यान से सुनिए। вчера было вторник, сегодня, сегодня कौन सा दिन है? वेडनेसडे, सरेदा, а завтра
azaftra, and tomorrow azaftra bhujet, and tomorrow it will be chetvir. तो ये तीनों एक सेंटेंस में आपको यूज करके बताना है. सपोज इफ इट इज संडे टुडे, मान लीजिए, so I will ask the question, do you answer? Какой сегодня день? बताइए मुझे, अनुषा. Сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье. А завтра какой день будет? Завтра будет понедельник. Понедельник. А вчера какой день был? Вчера была суббота. Very excellent. So I hope that many of you must have understood what is the logic behind how do we use the expression вчера, сегодня and завтра. इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लीजिए सब लोग. All right. अब कोई सवाल मुझसे पूछना चाहता था योगेश, आप पूछिए. Yes, sir. I'm not able to get it clear about Thursday and Friday. How we can pronounce that? Pronounce that. Thursday is चितवीर. थर्सडे को बहुत आराम से अपन याद कर सकते हैं, चौथा दिन होता है ना. इट इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक. सो चित्तीरी हमें पता है, चित्तीरी इज फोर, चितवीर Right, for right. फोर, और फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, सो प्यातनित्सा. प्याच पाई प्यातनित्सा. ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर ऐसे दिन हैं. These are the two particular days in the week which follow exactly the counting. चितवीर from चित्तीरी and प्यातनित्सा from 5. Okay. ठीक है, अब सब लोगों को पीपीटी मिल गया है. हाँ, हम लोग have you got the access to the PPT? Yes. No. Yes, sir. Okay. सर पीपीटी व्हाट्सएप ग्रुप में है. पीपीटी व्हाट्सएप ग्रुप में है. हाँ हाँ. व्हाट्सएप ग्रुप आज नहीं, ये तो पीपीटी आज बिल्कुल नया है जो मैंने को मेल किया. Yes, sir. Sukhwinder Singh has shared it for us in the WhatsApp group as well. अच्छा, ऑलरेडी डाल दिया है. वेरी गुड. सुखविंदर जी, आप तो सही है, स्पीड बहुत अच्छा है आपका. वेरी गुड. अच्छा, हमारे स्टूडेंट ग्रुप्स में वो शुभजीत है क्या आज? मिथुन, इज ही विजिबल? नहीं सर, आज दिख नहीं रहा. अच्छा, ये क्योंकि होमवर्क भी नहीं आ रहा है इनका और दिख भी नहीं रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज मेक नोट ऑफ इट. ठीक है ना जी? ऑलराइट. और कविता, आर यू अराउंड? कविता भामा. Sir, Vagdish here. Sir, I'll just take your question. Just wait for 5 seconds. Okay. Kavita, are you around? नहीं सर, वो भी नहीं है शायद. भी नहीं है शायद. अभी तो सवाल सर एक नए स्टूडेंट धर्मेंद्र करके हैं, वो लॉगिन हुए थे आज. अच्छा, मैं हरीश खुराना, मैंने भी पहली बार लॉगिन किया है. अच्छा, आपने भी लॉगिन किया. ठीक है, वेलकम. तो हरीश जी, आप पहले, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया सर. व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया सर. लेकिन जो मैंने पहले के वीडियो देखने की कोशिश की सर, वो वीडियो के नाम में कोई डेट वेट नहीं आती, तो पता नहीं चलता कि कौन सा वीडियो है, और कोई कितने मिनट का, कोई कितने मिनट का, कोई ओपन नहीं हो पा रहा है कि कौन सा फर्स्ट सबसे पहले देखना है, कौन सा सेकंड देखना है, तो मुझे मालूम नहीं हो पा रहा सर. मैं कुछ वीडियो में डेट दिया हुआ है. आप हरीश जी एक काम कीजिएगा. जी सर. एक काम कीजिएगा हरीश जी, आप एक मेल कर दीजिएगा हमें. ठीक है, मुझे मेल कर दीजिएगा आप, जो भी इशू हो रहा है आपको. आपका ईमेल आईडी दे दो सर. उसमें, हाँ, उसी में हम लोग डाल देंगे. अभी ग्रुप में भी है, इसके बाद सेशन के बाद भी दे देंगे आपको. तो आप एक मेल कर दीजिएगा उसको, फिर हम टेक्निकल जो भी इश्यूज हैं उसको देख लेंगे. ठीक है, क्लास को ध्यान से सुनिए, अटेंड कीजिए, और जितना रेगुलरली अटेंड करेंगे उतना आसानी से समझ पाएंगे चीजें. श्योर सर, थैंक यू. ठीक है. Excuse me, sir, I have a question. हाँ धर्मेंद्र जी, पूछिए. Sir, I just got the login credential now. It seems lot of studies has already been covered. What is the best way to make it for the last time? ठीक है, ये सेशन जब हो जाएगा ना, तो एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा. आई टेल यू हाउ टू डू इट क्विकली. ठीक है ना, तो आपको
जो टिप्स हैं वो मैं बताऊंगा उसमें। Quite a lot. डोंट वरी। Okay, sir. I'll contact you on this. ठीक है, और कोई किसी का इम्पोर्टेंट सवाल है जो पूछना Sir, चाहता है? Vagesh here. हाँ वागेश पूछिए। Sir, I sent my new mobile number, sir, in the chat box. मिथुन, अच्छा मिथुन, इनका यार एक बार ये देख लेना, मोबाइल नंबर से कोई फर्क पड़ता है? वैसे मोबाइल नंबर से कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए मुझे लगता है। Change the number, sir. WhatsApp old number, it's not there. तो व्हाट्सएप आप लिंक ले लीजिएगा फिर से, यू कैन ज्वाइन विद द न्यू मोबाइल नंबर, देयर नो इशू। सर वहाँ पे आपके ही चैट में ना किसी ने ग्रुप का यूआरएल भेजा हुआ है, तो किसी भी नंबर से उसमें जाएंगे तो वो हो जाता है। ठीक है वागेश, आफ्टर द Okay, सेशन sir. कांटेक्ट अस। हां Sure, okay, sir. अब हम हेलो। लोग आगे बढ़े। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। हाँ सुखविंदर जी। हाँ, सवाल ये है सर, जो प्रोनाउंसिएशन में काफी मतलब समझ में नहीं आ रहा इसका कौन सा शब्द कैसे बोला जाएगा, ये बड़ी कौन सा दिक्कत शब्द है। कौन सा शब्द नहीं समझ में आ रहा है, आप बताइए। नहीं, काफी सारे आज मैं हर रोज थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ, जो भी मटेरियल है मेरे पास मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप तो मुझे एक ही दिक्कत आती है आप प्रोनाउंसिएशन की मुझे बस। कोई बात नहीं, आप मुझे अपना कोई भी जो भी लेटर है मुझे प्रोनाउंस करके बताइए। अभी 2 मिनट हम आपके साथ बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं उसमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। बोलिए। जैसे सर अभी आपने बोला था वो, 1 मिनट में अभी बताता हूँ। वो आपने बोला था फै बै और तय आएगा तो फै बोला जाएगा, ऐसे करके बोला था ना एक। जैसे सर ये बतौर निक है जो ट्यूसडे को बोलते हैं, तो आपने बोला था ये फतौर निक बोला जाए। पहली बात जो है ना, उन लेटर्स को आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए इंडिविजुअली। जैसे फ है ना, फ, और जब हम लोग वे और तय, वे और तय की साउंड हमें पहले पता होना चाहिए कि इनकी अगर सिंगल अगर हम लोग आवाज लेंगे, सुनेंगे या बोलेंगे तो कैसी होगी। फ है ना, वे और तय, तो फ, इसलिए फ की साउंड आ रही है बिकॉज। हाँ, तो पहले सबसे पहला आपने ये करना है कि पहले वे बोलना ठीक से आना चाहिए, तय बोलना ठीक से आना चाहिए। जब आप नेचुरली भी जब बोलेंगे ना, वे और तय को अगर आप बहुत जल्दी जल्दी नेचुरली भी बोलेंगे तो भी आप देखेंगे कि वो साउंड जो है आपस में मिक्स हो रही है, तोड़नी। ठीक है, और वे की साउंड तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ वे है और तय है, तोड़नी। तो वे और तय जब भी मिलते हैं तो साउंड आती है फ की। इट इज नॉट कम्प्लीटली फ, लेकिन तोड़नी, बिकॉज वो आधा उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए इसके बारे में एक डेडिकेटेड लेसन आप लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनके आपस में टकराने से जो उसकी साउंड है वो अलग हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे एक सवाल पूछा था कि हम लोग पे, क, ये और सॉफ्ट साइन है ना, पे या तय और सॉफ्ट साइन जब लिखते हैं तो इसकी साउंड आती है प्याज, प्याज। और पे या और तय लिखें प्यात, प्यात और प्याज, फर्क है ना दोनों में। प्यात और प्याज, क्योंकि एक जो है हार्ड कॉन्सोनेंट है तय, उस पे खत्म होता है शब्द, तो प्यात, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही सॉफ्ट साइन इसमें लग जाता है तो वो उसको और सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट साइन लगने का मतलब ही होता है कि किसी भी हार्ड कॉन्सोनेंट को वो सॉफ्ट कर देता है। तो जब तय है इट चेंजेस इनटू च, प्याज, प्याज। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरीके के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स या कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स या साइंस आपस में मिलते हैं तो ये कुछ डिफरेंट साउंड्स होती हैं। ठीक है, जैसे क्लेप, क्लेप, तो क्लेप ब आ से अंत होता है इसका, इट एंड्स विद ब, बट साउंड किसकी आती है, पै की, क्लेप, क्योंकि उसकी डिवॉइसिंग हो जाती है। इसके बारे में आप एक डेडिकेटेड लेसन आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको एक चीज पे फोकस करना है, किसी भी नए शब्द को आप सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि आप जानते ही नहीं उसके बारे में। अभी सिर्फ वो शब्द और वो एक्सप्रेशन आप लोगों को ध्यान से सुनना है और सीखना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब उसकी एक्सरसाइज आप एक बार कर लेंगे
उसके बाद ही इतनी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हम अपने से अगर मान लीजिए कोई कुछ और पढ़ लेते हैं, 2-4 लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं कहीं और, तो हम उसको प्रोनाउंसिएशन ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बच्चे भी देखिए, हम बचपन में भी जब कोई भाषा सीखते हैं तो हम नॉर्मली 2 तरीके से सीखते हैं। एक, या तो हम अपने परिवार में उसको सीखते हैं, तो अगर हमारे परिवार में भी कोई गलती करता है, उसको बोलता ही गलत है, तो हम ताउम्र उसको गलत ही बोलते हैं, हम उसको शेयर नहीं कर पाते हैं। ये चीज आपने ध्यान दी होगी। जैसे कि कुछ हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ड़ा को रा बोला जाता है और रा को ड़ा बोला जाता है। जैसे कई लोग जो है वो घोड़े को घोड़ा, तो पहले तो हमें ये सीखना है कि हम उसको सही तरीके से बोलें और सुनने की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आप नई चीज जब भी लिखेंगे पढ़ेंगे तब उसको सही से बोल पाएंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान से पहले आप सुनिए जो चीज मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद जब हम लोग नए, मैं आपको लेसन्स दूंगा जो आप लोगों से मैं पढ़वाऊंगा, उसमें आपको ऑटोमेटिक एक्सरसाइज मिलेगी पढ़ने की। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो पीपीटी है उसको खोल सर लीजिए सब एक लोग। छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। सर जैसे कोई वर्ड होता है रशियन लैंग्वेज में, उसमें स्ट्रेस का पता नहीं चलता, स्ट्रेस किस पे, तभी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। ज्यादातर केसेस में जो पहला वॉवल होता है, ज्यादातर केसेस में उसमें पहले वॉवल पे ही स्ट्रेस होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 90% केसेस में जो भी पहला वॉवल होगा उस शब्द का, उस पे स्ट्रेस होगा। एक्सेप्शंस जो होते हैं उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा याबलका या मलको, या आपने देखा और भी कई है कुछ। ज्यादातर वर्ड्स में जो पहला ही वॉवल हो वॉवल तो आप लोग समझते हैं ना, वॉवल आप सब लोगों को पता है ना कौन कौन से हैं, हाँ जी सर। है ना, उसको आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। जैसे कोई भी शब्द अगर आप लेंगे, जैसे खतो या श्तोई है, तो खतो और श्तो में एक ही वॉवल है ओ, तो नेचुरली एज अ रूल उसी पे स्ट्रेस होगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं। जिसमें एक से ज्यादा वॉवल्स हैं उसमें हमें ये पता करना होता है कि भाई अब कहाँ लगेगा स्ट्रेस। ठीक है, जैसे उदाहरणीय, उदाहरणीय का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उदाहरणीय? स्ट्रेस साइन। स्ट्रेस। हाँ, उदाहरणीय में जब जो पहला वो है ऊ है, उसी पे स्ट्रेस है, क्योंकि वो पहला जो वॉवल है वो शुरू ही एक वॉवल से हो रहा है शब्द जो है उदाहरणीय। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान, ज्यादातर केसेस में शुरू में ही लग जाता है वो, जहाँ पे भी वॉवल आएगा। वो पहला भी हो सकता है लेटर, वो आखिर में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन लार्जली 90% से ज्यादा केसेस में वो सबसे शुरू में जो वॉवल आएगा उस पे। और बाकी जो ऐसे शब्द हैं जिसमें वॉवल की पोजीशन कहाँ होगी, ये एक्सेप्शन होते हैं। इसके बारे में कंप्लीट लेसन आपको मिलेगा, तो डोंट वरी। ठीक है, अभी हमारा जो फोकस है वो सही तरीके से उसको बोलना आना चाहिए, लिखने आने में, क्योंकि हम जब लिखेंगे उसको उसकी प्रैक्टिस अलग से करेंगे आप लोग। अभी तो सिर्फ आप लोगों ने लिखना शुरू किया है, ये जो लेटर्स है अभी तक तो आप शब्द में आए ही नहीं। अभी बोलने की प्रैक्टिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक क्लासेस शुरू हों उस पे हम लोग कैसे लिखा जाता है सही तरीके से चीज़ों को, उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप लोग सब जो है स्लाइड नंबर 4 पे आ जाइए, स्लाइड नंबर 4। ठीक है, मुझे जैसे ही मिल जाए आपको मुझे तुरंत ओके करिए। मिल गया आपको? यस सर। ठीक है, तो इसको Yes, एक sir. बार ऐसा है, सुखविंदर जी आप पढ़िए इसको, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ जी हाँ जी। इसको पढ़िए। इस पे है सर, हेलो, जदरा बास्तिया। इसको आप जदरा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दिख ऐसा रहा है ना।
क्योंकि आपको अभी क्या है कि ये पता है कि भाई ये ज है हाँ जी और द्रा है, क्योंकि आपको दिख रहा है ऐसा। जा हाँ जी पता है आपको, द्रा आपने बना लिया, द रे और आ को जदरा, और उसके बाद वस्तु हुई, क्योंकि ये दिख रहा है वैसा। हाँ जी लेकिन बस जब हमने पढ़ा है कि हाँ, क्योंकि हमने अभी क्या है, लेटर्स को अलग अलग पढ़ना सीखना है। अब हाँ जी हमारा नेक्स्ट लेवल है कि हमें जब मिलाते हैं हम इनको, तो जब भी किसी तरीके के लेटर्स को आपस में मिला दिया जाता है तो उनकी साउंड थोड़ी अलग होती है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ये ज़रास्त्री, 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 क्योंकि इसमें आप बता सकते हैं मुझे पहला वॉवल कौन सा है? ज़रास्त्री में पहला वॉवल कौन सा है? ज़रास्त्री, आ है। तो जैसे ही मैंने आ पे स्ट्रेस किया, ज़रास, ज़रास, है ना, ज और द आपस में फ्यूज होते हैं, तो ज़्रा की साउंड आती है, ज़्रा, ज़्रा, ज़रा। व की जो साउंड है एकदम कम हो जाती है, स्त, स्त, ज़रास्त, ज़रास्त, ज़रास्तुई, ज़रास्तुई, ज़रास्तुई। ठीक है, तो हमें ये पता है कि आ पे हमें स्ट्रेस देना है। आप नेचुरली भी इसको बोलेंगे ना, अगर नेचुरली भी बोलेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन एकदम सही आएगी, क्योंकि आपने स्ट्रेस पकड़ लिया इसका। ज़रास्तुई, ज़रास्तुई। और वैसे ज़रास्वीचे, ज़रास्वीचे, ठीक है ना, ज़रास्वीचे, क्योंकि ऊ पे तो स्ट्रेस है नहीं, ऊ पे स्ट्रेस नहीं है ना, इसलिए उसकी साउंड एकदम कम हो, उसके लिए उसकी साउंड एकदम कम हो गई, वो आ ही नहीं रही है एक तरीके से। ज़रास्वी, ज़रास्वीचे। वरना क्या होता है, ज़रास्वी इंग्लिश का वर्ड होता है ये, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है। लेकिन क्योंकि रशियन में जब एक बार स्ट्रेस लग जाता है तो ऑटोमेटिक बाकी के जो वॉवल है तो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, तो साउंड कम हो जाती है। ज़रास्वी, ठीक है, समझ गए बात? थोड़ा बहुत समझ गए ना? ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़िए, थर्ड पढ़िए। थर्ड में क्या है? दोब्रोए यत्रो, दोब्रो यत्रो। अगर मान लीजिए ये जो दोब्रे लिखा हुआ है, इस पे ओ पे स्ट्रेस है ना, पहला वॉवल वही है, दोब्रे, दोब्रे। रे की साउंड क्यों आ रही है? क्योंकि पहले ओ पे स्ट्रेस है, तो दूसरा जो ओ है उसकी साउंड कम हो गई, कम हो गई ना, इसलिए आज ऐसी साउंड आ रही है, दोब्रे, दोब्रे, दोब्रोए नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस है ही नहीं दूसरे वाले पे, दोब्रे। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है, मान लीजिए कि ऊ पे ही सारा स्ट्रेस है, तो साउंड क्या होगी? अब वही ध्यान लगाइएगा आपकी ओ की साउंड कैसे आएगी? उत्तरा, उत्तरा, एक्सीलेंट। समझ गए बात? बात समझ गए आप? हाँ जी हाँ, यही मेन चीज यही पकड़नी है कि जब ऊ पे स्ट्रेस है तो ओ की साउंड आ जैसे आएगी, उत्तरा, दोबरा है, उत्तरा। ठीक है, यही चीज हमें ध्यान रखना है। वैसे ही अभिषेक अपना माइक्रोफोन जरा म्यूट कर दीजिए। उसके बाद जो चौथा है उसको पढ़िए। दो संविधान्या। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, हाँ जी, मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो दूसरा शब्द है ना, हाँ जी, इसके ई पे स्ट्रेस है, ई पे। हाँ जी, तो क्या होगा इसका साउंड? दोनों को मिला के अगर अपन बोलेंगे तो दो संविधान, नहीं नहीं, अब तो ओ पे साउंड, ओ पे स्ट्रेस है ही नहीं ना, क्योंकि वो स्ट्रेस तो मैंने बोला ई पे है। हाँ जी, तो क्या होगा? संविधान धान्य, ये देखिए, जब ई पे स्ट्रेस है, ओ पे नहीं है, तो ओ की साउंड हो जाएगी आ जैसी, 10 विधानिया, जैसे तो हम लोग बोलते हैं ना 10 विधानिया, लिखा इसको इस तरीके से जाता है। हाँ, लेकिन इसमें जब ओ पे स्ट्रेस है ही नहीं तो उसकी साउंड हो गई आ, 10 विधानिया, 10 विधानिया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। ठीक है ना? थैंक यू। उसको पहले लॉजिक को समझ लीजिए कि करना क्या है। 10 विधानिया, ठीक है, समझ गए? तो ये 4 चीजें हम लोग क्लियर हो गई हैं। एक्सक्यूज मी सर। कोई सवाल पूछना चाहता है? पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10वीं दानियां अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, एक साथ क्यों नहीं लिखा हुआ है सर?
दसवीं धारणीय अलग अलग इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये दो एक्सप्रेशंस को मिला के एक शब्द बनाया गया है। द मतलब होता है टिल, तक, फिर मिलने तक। रशियन में बोला जाता है फिर मिलने तक, तो इसमें जो तक है वो होता है दो। और स्वीदानिया का मतलब होता है टू मीट, तो टिल वी मीट अगेन, लिटरली। इसीलिए दो एक्सप्रेशंस को आपस में मिलाया गया है एक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, कि फिर मिलने तक। और इंग्लिश में इसको गुड बाय बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में ही हम लोग बोलते हैं फिर मिलेंगे, लेकिन ये तो दो अलग अलग शब्द है ना, फिर मिलेंगे। या फिर लोग बोलते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, ये कई सारे एक्सप्रेशंस है, लेकिन इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट क्या है, बाय या गुड बाय। ठीक है, इसलिए दो अलग एक्सप्रेशंस हैं, इनको मिला के जब बोला जाता है तो हम एक ही पे स्ट्रेस डालेंगे। 10वीं धारणा। सर एक बार फिर से, हेलो इनफॉर्मल और हेलो फॉर्मल में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस। हेलो फॉर्मल और हेलो इनफॉर्मल का सिंपल फंडा यही है कि जब भी आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में हैं, या आपसे कोई ओहदे में बड़ा है या आपसे उम्र में बड़ा है, तो हम लोग जरा स्वीचे बोलते हैं। और अगर आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, तो हम लोग जरास्वी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी में तुम बोलते हैं तो उसके लिए जरास्वी, और आप बोलते हैं तो जरा स्वीचे, ये फर्क है। ठीक है, हाँ चलिए हम लोग अब आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाइए आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए सब लोग? और कोई वॉलेंटियर करना चाहता है इसको पढ़ने के लिए? हमारे स्टूडेंट्स में से कोई है जो पढ़ सकता है इसको? I would like to try, sir. अनुष्का, शुभकरण। कौन पढ़ना चाहता है बताइए? सर शुभकरण। हाँ, शुभकरण। ठीक है, शुभकरण आप पढ़िए। अनुषा आप इसके बाद जो डायलॉग होगा उसमें हेल्प कीजिएगा। Okay, sir. ओके सर। बोलिए शुभकरण। Zdravствуйте, Галина Николаевна. Николаевна. Здравствуй, Анна. Анна. У вас есть газета «Аргументы и факты». Да, есть факты. Да, есть. Ты хочешь ее читать? Да, хочу. Можно. मोजना, क्योंकि पहले ओ पे आ गया स्ट्रेस। मोजना। ओके सर। Да, хочу. Можно. वेरी गुड। Конечно. Спасибо. Пожалуйста. पожалуйста। जब भी कन्येशना जो है ना, तीसरा नीचे से जो तीसरा शब्द है कन्येशना, मीन्स ऑफ कोर्स, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि च है लेकिन श की साउंड आ रही है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये और च जब आपस में मिलते हैं तो श की साउंड आती है। कन्येशना, कन्येशना। ठीक है, इसका ध्यान रखना हम लोगों को। कन्येशना, कन्येशना, कन्येशना। अब मेरी आवाज को आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे बता सकते हैं स्ट्रेस कहाँ पे है इस वाले शब्द में? कन्येशना, कन्येशना। सेकंड ई पे सर। ये पे स्ट्रेस है, ये पे। ये तो है ही नहीं, ये। ठीक है, समझ गए कैसे साउंड में आया? आपने तीन इसमें लॉजिक लगाया। एक देखा कि सर बोल रहे हैं कन्येशना, तो ओ पे तो स्ट्रेस नहीं है, वरना वो कोनियेशना होता है ना, कौन। तो ओ पे नहीं है। उसके बाद अपने पास दो वॉवल और बचे, ये और ओ। फिर हमने ध्यान दिया कि कन्येशना आखिर में भी आ है, ओ नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ एक जो हमारे पास वॉवल बचा, ये, इस पे स्ट्रेस है, क्योंकि इसकी साउंड भी थोड़ी हायर है। कन्येशना, कन्येशना। उदाहरणीय का एक ये बहुत बड़ा लॉजिक भी है कि उसकी साउंड जो होती है ना, थोड़ी सी हायर होती है बाकी के वॉवल से। इससे भी हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। कन्येशना,
Конечно. Доброе утро. Доброе утро. ओ पे स्ट्रेस है पहले वाले पे. Доброе утро. उतरा पे है, ऊ पे है स्ट्रेस. इससे पता चल जाता है. जिसको जितना प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे आप. अब मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, फिर अनुषा इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है? Okay, sir. ठीक है. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуй, Анна. У вас есть газета «Аргументы и факты»? Да, есть. Ты хочешь ее читать? Да, хочу. Можно? Конечно. Спасибо. Пожалуйста. इसमें एक चीज का ध्यान अगर आप देंगे तो एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको बोलने का एक अंदाज भी होता है कि हम अगर मान लीजिए किसी को पूछ रहे हैं सवाल, तो उसका जो बोलने का तरीका होगा अलग तरीके का होगा ना. उसका साउंड, क्वेश्चन का साउंड अलग होगा. किसी चीज को आप ध्यान से बताते हैं, एक्सप्लेनेशन है, उसमें थोड़ा सा पॉज होगा. तो इन सब चीजों को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे. इसका अब अनुषा आप इसको पढ़िए और इसका क्या मीनिंग है ये बताइए, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा इसके बाद. Okay, sir. पढ़िए. Здравствуйте, Galina Nikolaevna. May I translate it now or after, sir? पढ़ लीजिए पूरा उसके बाद. Okay. Здравствуй, Anna. У вас есть газета «Аргументы и факты»? Да, есть. Ты хочешь ее читать? Да, хочу. Можно? Конечно. Спасибо. Пожалуйста. अब इसका मीनिंग मुझे समझाइए और एक चीज से इसको कंपेयर कीजिएगा आप कि जो आप अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, क्या वो जो पैटर्न है वो रशियन से मैच कर भी रहा है कि नहीं. क्योंकि जब हम लोग रशियन में पढ़ रहे हैं तो इसको इतना फ्लैट पढ़ रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सवाल है कि जवाब है. और जब इंग्लिश में इसको आप अभी ट्रांसलेट करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, यू वुड हैव दैट मैनर, है ना, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन. तो वी हैव दैट मैनर इन आवर स्पीच. उसका ध्यान रखना है. अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, देन आई विल हेल्प यू. Good morning, Galina Nikolaevna. Good morning, Anna. Do you have... आपको कैसे पता चला अभी सुबह का समय है? Oh, sorry. Hello. I'm sorry, sir. It's hello. Hello, Galina Nikolaevna. Hello, Anna. Do you have the magazine Arguments Gazeta and is Gazeta is newspaper. Okay. Do you have the newspaper Arguments and Facts? Yes, I have it. Do you want to read it? Yeah, I want to. Mojna, I don't know what it is. Mojna is may I. May I. May I read it? Of course. Thank you. Don't mention Pajal. It's all right. It's all right. या थैंक यू या मेंशन और कुछ भी उसका मतलब हो सकता है. ठीक है. इसमें जब हम लोग देख रहे हैं, हमें बेसिकली 3 चीजों पे खास ख्याल रखना है. एक तो जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका नाम चेंज नहीं होगा. Argumenti Facti is a name of a newspaper, so it won't change. It will remain Argumenti Facti. ठीक है. Argumenti. जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना तो एक साथ में पढ़ते हैं हम लोग. Argumenti Facti. Argumenti e Facti नहीं पढ़ते हैं. ठीक है. पहला. दूसरा हमने इसमें देखा कि जो गलीना निकोलाएवना है, she senior to Anna. जब भी तो जो आना है, she is using Zdravstvuyte, गलीना निकोलाएवना. गलीना निकोलाएवना को वो Zdravstvuyte बोल रही है और जो गलीना निकोलाएवना है वो आन्ना को Zdravstvuy कर रही है. ये ध्यान दिया आपने? Yes sir, I've noticed. Okay. ठीक है. उसके बाद हमने देखा है कि उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, U was yes Gazeta. Do you have the newspaper Argumenti Facti? The yes. The yes. दा और yes को एक साथ हमने इसलिए बोला क्योंकि वो तुरंत उसका जवाब दे रही हैं. हाँ है मेरे पास.
ठीक है, तो जैसे हम लोग हिंदी में भी जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कई चीजों को बहुत समय नहीं लगाते हैं बोलने में, एग्जैक्टली वैसे ही है। Yes. जब हम सवाल पूछते हैं तो गलीना निकोलायevna is asking Anna that would you like to read it? तो क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है, the manner should come in the speech that when somebody is asking a question, क्या तुम्हें पढ़ना है, would you like to read it? तो वो आना चाहिए मैनरिज्म में। जब सवाल होता है तो उसकी पिच इंटोनेशन हायर होता है अंत में। At the end, the intonation, if you are asking a question, would be higher. Okay? उसके बाद द खचू, इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, जब उस तरीके का कम्युनिकेशन है तो पाउज नहीं होगा। द खचू मोशना, तो मोशना में सवाल पूछा है इसीलिए उसका एक्सप्रेशन होगा मोशना। मोशना, क्या मैं ले सकती हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ, यस आई वॉन्ट, मे आई। अगर आप इंग्लिश में भी या हिंदी में भी ये एक डायलॉग बोलते तो आपका एक्सप्रेशन वैसा ही होता। उसके बाद कान्यशना, तो गलीना निकोलायevna से ऑफ कोर्स, हाँ ले सकती हूँ। तो ये जो कन्यशना है इट वुड बी अ फ्लैट एक्सप्रेशन। स्पासीबा, ये जब आपको अगर कोई आपकी मदद करता है या आप अगर कुछ मांगते हैं उनसे और वो आपको अलाउ करते हैं तो उसमें एक फीलिंग होती है कि आप थोड़ा खुश होके बोलते हैं स्पासीबा, कि आपने मुझे अलाउ कर दिया, मुझे पढ़ने के लिए दे दिया ये, तो थैंक यू वेरी मच, है ना। तो स्पासीबा, देन गलीना निकोलायevna इज सेइंग दैट ठीक है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए पजास्ता। तो उसको थोड़ा इमेजिन भी करना हमें कि इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको किस तरीके से क्रिएटिवली अपनी स्पीच में भी लाना है। क्योंकि हम लोग अगर कोई भी नई भाषा सीखते हैं तो हमें उसके मैनरिज्म को भी सीखना होगा साथ में, ठीक है। इसका ख्याल रखेंगे आप लोग। अब हम लोग सवाल ले लेते हैं कुछ, फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ पूछिए। Sir, what is the surname in the Galina? After that, what is the surname? गलीना निकोलायevna, Nikolaevna. Okay. निकोलायevna वह है ना उसमें। हाँ बिकॉज़ Nicola, sorry, Nikolaev, निकोलायव, बोलिए निकोलायव, निकोलायव, निकोलायव ना निकोलायevna। हाँ, इसका रीजन क्या है ये समझिए, आप तुरंत सीख जाएंगे इसको सब लोग। वहां पे लेडीज का जो सरनेम होता है ना, जैसे मान लीजिए इंडिया में भी जैसे फादर का टाइटल होता है, फिर हस्बैंड का टाइटल होता है, ऐसा एक ट्रेडिशन है ना। तो निकोलाई है, सो द नेम इज निकोलाई। निकोलायevna है ना, तो निकोलाई, पहले तो हमने ये सीख लिया निकोलाई। सो वाइफ ऑफ निकोलाई इज निकोलायevna। जैसे कि और भी कोई रशियन नाम हम लोग देख सकते हैं, अंद्रियेवना, द वाइफ ऑफ आंद्रे इज अ रशियन नेम, आंद्रियेवना। अलेक्जेंडर सुना होगा आप लोगों ने नाम, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, अलेक्जेंद्रोवना। तो इस तरीके से टाइटल वहां पे सरनेम्स जो है वो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये ट्रेडिशन है कि जो भी आखिर का नाम है, सरनेम जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हस्बैंड से, और अगर शादी नहीं हुई है तो फादर का जो टाइटल होता है उनके नाम से वो टाइटल बनता है। तो वो आप सीख जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो निकोलायevna, गलीना इज द फर्स्ट नेम, निकोलायevna इज द सेकेंड नेम। रशिया में ये चीज हमेशा से बहुत पॉपुलर है, इसका ख्याल रखिएगा कि वो लोग सरनेम्स यूज करते हैं, नाम कम यूज करते हैं, नाम का वो शॉर्ट नेम यूज करते हैं। जैसे गलीना इज गाल्या, ठीक है। ओके सर। तो ऐसे लास्ट टाइम हमने कंट्रीज में डिस्कस किया था, जैसे अगर लास्ट में ए हो तो ये हो जाता है और आ हो तो ये हो जाता है, तो ऐसे इसमें भी चेंज आता है सर सरनेम में? हाँ, सरनेम में भी होता है, प्रोनाउंसिएशन उसी तरीके से होगा, वॉवल पे कहाँ पे स्ट्रेस है। गलीना निकोलायevna, ठीक है, गलीना तो ई पे स्ट्रेस है, वरना गालीना होता, गलीना
ई पे स्ट्रेस है, गलीना निकोलाएवना, निकोलाएवना। तो किस पे है? निकोलाएवना। आ पे स्ट्रेस है, सर एल ये के बाद, सभी केसेस में निकोलाएवना। होगा ऐसा? सभी केसेस में, जिसमें भी वॉवल होगा सब में होगा ये। नहीं मेरा इसमें भी एक से ज्यादा था कि जैसे लेडीज है तो वना लगेगा लास्ट में सरनेम। हाँ, सिर्फ ये फीमेल नेम्स में होता है। जो आदमी तो होते हैं उनका आ और या नहीं होता। सर जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम पेत्रोविच है जैसे रशियन का, हाँ, तो वो उसके फादर लेडीज का है तो, नाम प्योतर है। और जो विच प्योतर। है वो लेडीज के केस में भी लग और जाएगा। अगर वो लेडीज होगी पित्रोवना हो जाएगी, वो पित्रोवना। आदमी होगा तो पित्रोविच। जो फर्स्ट नेम है वो है प्योतर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट नेम होगा प्योतर। अगर उसको मान लीजिए उसका प्योतर का बेटा है तो वो हो जाएगा पित्रोविच, पित्रोविच। और अगर फीमेल होती तो वो लगाएगी पित्रोवना, पित्रोवना। जैसे उनका बेटा बेटी होते, बेटा जी बेटी है अगर प्योतर के, तो वो बेटा लगाएगा पित्रोविच और बेटी लगाएगी पित्रोवना। सर फॉर एग्जांपल मतलब कई बार मैंने देखा है जैसे लेडीज भी विच लगाती हैं तो वो चल पड़ता है। विच तो कहीं मैंने सुना नहीं, वो उसमें देखा होगा आपने, अमेरिका में जो सरनेम्स होते हैं ना हाँ अलास्का के जी आसपास, हाँ जी वो हाँ लोग जी। लगाते हैं। बट वो रशियंस का वो ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते हैं, जैसे क्योंकि एक स्वेता जमान पेत्रोविच, हाँ, वो जैसे लेडी। कुछ एक फिल्म, हाँ कुछ है इस तरीके से, लेकिन ये विच सिर्फ अमेरिका में होता है। दे हैव नथिंग टू डू विद अमेरिकन नेम्स। ठीक है। ओके सर ओके। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, किसी और को कोई सवाल पूछना है इस डायलॉग से रिलेटेड? सर ये फोर्थ लैंग्वेज से रिपीट कर दीजिए। फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन। द का मतलब हमें पता है यस, द यस आई हैव। चिताज, वुड यू लाइक टू रीड इट? चिताज मतलब एक वर्ब है ना, चिताज, टू रीड। ईओ इज फॉर द न्यूज़पेपर, गज़ेता। ठीक है। और ती इज बिकॉज आन्ना इज जूनियर टू हर, है ना, तुई, वरना वी होता। तो तुई खचियच जो वर्ब है चेंजेस इनटू कोचिश। ईओ मींस न्यूज़पेपर, चिताज क्या तुम इस न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहती हो? रखच्चू मोशना। तो इस तरीके से ये एक डायलॉग बन रहा है। इसमें वी और ती का जो रिलेशन है उसको हम लोग शुरू में ही समझ गए। गलीना निकोलाएवना जो है वो सीनियर है, आन्ना जूनियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो पेज खोल लिया आप लोगों ने? अनुषा इसको पढ़िए जरा, मॉडल जो दिया हुआ है। Yes, sir. Что это? Это вилка. अगर Что आपको सवाल это? पूछना है, आप दुकान में गई है, मान लीजिए दुकान में हैं आप, तो आप कैसे सवाल पूछेंगे? Что это? तो ऐसा की पिच थोड़ी हायर होगी। रशियन में ये चीज समझ लीजिए आप लोग कि अगर सवाल पूछना है तो ऐसे आराम से काम नहीं चलता है, आपको Okay. थोड़ा सा आखिर में पिच हायर करना पड़ेगा। तो ऐसा, व्हाट इज दिस, है ना, वैसे ही Okay, sir. सवाल पूछना है। और उसकी तरफ मान लीजिए आप किसी बुक शॉप में हैं तो वहां पे आप बताएंगे कि तो ऐता कनिगा, दिस इज अ बुक। तो इसको हमने एक एक्सप्रेशन से समझ लिया कि भाई ये किसी उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जीवित नहीं है, विच इज इनएनिमेट। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द क्वेश्चन, तो ठीक है। मान लीजिए आप चार दोस्त खड़े हैं और आप कह रहे हैं शतो ऐता, तो वो रशियन नहीं समझ जाएगा, कहेगा यार ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज यू आर आस्किंग शतो, you have to use the word kto, then they would understand you are asking about a person. And if you are in a bookshop, you are pointing finger towards a book and you are asking kto eta, हो सकता है वो सोचे कि ये साथ में जो काम कर रहा है इसके बारे में पूछ रही है। समझ गए बात? Yes, तो sir. ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है,
Shtoeta and Ktoeta should be directed with the thing and the person you are asking question about. उसके नीचे जो सवाल है ये बहुत सिंपल चीज है, इससे ही आपकी कम्युनिकेशन शुरू होती है रशियन में. Shtoeta और उसका जवाब हमेशा एता होता है. एता अकनो, एता जर्नल, एता स्लावार, एता लोश्का. कोई भी दुनिया में जितने भी शब्द हैं रशियन में सब इन दो से ही उनको डील किया जाता है, Shtoeta और Ktoeta से. तो जो भी आपको वर्ड्स पता हैं, जो भी वर्ड्स पता है आप उसके बारे में सोचिए. जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये बोलना है कि Ktoeta and you have a word brat. Brat means brother. So the question would be Ktoeta. ठीक है, बहुत सिंपल है. अब 5 आप लोगों के 2 होमवर्क हो गए. एक तो आप लोगों ने पहला मैंने क्या बताया था, शुरू में कुछ बोला था ना होमवर्क के लिए, मोबाइल नंबर डिजिट मोबाइल नंबर्स को लिखना है डिजिट्स में. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5-5 शब्द आप सब लोग मुझे लगता है जानते हैं इस समय, तो उसको आपने कैटेगराइज करना है कि ये श्तो की कैटेगरी में या क्तो की कैटेगरी में. क्वेश्चन बनाना है Shtoeta. मान लीजिए अब मुझे कहना है कि दिस इज अ पेन, एता रूचका. Shtoeta एता रूचका, ये एक हो गया मॉडल. दूसरा हो गया Ktoeta, एता ब्रात. दूसरा मॉडल हो गया Shtoeta. मान लीजिए कनीगा है तो Shtoeta एता कनीगा. दूसरा है मान लीजिए आपको बोलना है Ktoeta और मदर है एता मामा, दिस इज द मदर. तो इस तरीके से आप 5-5 सब लोग सेंटेंसेस बनाएंगे, ऑडियो में उसको रिकॉर्ड करेंगे और मुझे भेजेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर यू प्लस योर मोबाइल नंबर्स इन द नंबर फॉर्मेट Argentine J6. और नोल आप सब लोग को पता है तो नोल भी आप उसमें यूज करेंगे. ठीक है. अब हम लोग फटाफट कुछ सवाल ले लेते हैं, देन आई विल वाइंड अप दिस सेशन. एक पहले क्लैरिफिकेशन मैं ये भी दे दूं, लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि ओडीएल वाला कोई इसमें है. ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ना माइक्रोसॉफ्ट पे, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन ओडीएल एंड ऑनलाइन. फॉर ओडीएल पीपल वी आर कंडक्टिंग दी सेशंस ऑन फेसबुक. तो आपके फ्रेंड्स भी अगर कुछ पूछते हैं इस तरीके से तो उनको बता दीजिएगा कि सर ने इस तरीके से अरेंज किया है, तो परेशान ना हो अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का वो नहीं मिला है लॉगिन आईडी पासवर्ड, बिकॉज ये ऑनलाइन वालों के लिए है. और ओडीएल वालों के लिए हम लोगों ने फेसबुक पे अरेंजमेंट किया हुआ है, जो कि फ्राइडे को 4 बजे हम लोग उसको कंडक्ट करेंगे. ठीक है, ये सब बता देना आपस में. आप सवाल पूछिए. सर वी आर साउंडिंग दिस इज चतो और श्तो. थोड़ा लाउडली बोलिए, नहीं समझ आया. सर ये चतो बोलेंगे श्तो बोलेंगे? तो च और त जब आपस में मिल जाएंगे तो श की साउंड आती है. तो उससे फिर हम इसे स्टो जो एक्चुअल में 100 को रेफर करता है, STO जिसे हम पढ़ते हैं. तो एस है ना, वो तो एस है इसलिए स्टो है. तो स्टो क्योंकि उसमें तो कोई ऐसी साउंड है ही नहीं ना. एस बहुत सिंपल साउंड है स्टो, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं होता है. लेकिन च और त जब आपस में मिलते हैं तो थोड़ा सा चेंज आता है. स्टो. ओके सर. ठीक है, फिर और कोई सवाल किसी को पूछना है? ये सर इसमें जैसे स्टो एटा है तो आंसर विल बी एटा कनीगा, दिस इज बुक. हाँ, अगर स्टो है इसका मतलब है कि कोई भी चीज इनएनिमेट है, जो जीवित नहीं है. और अगर आप नॉन लिविंग है और आप किताब के बारे में बोलना चाहते हैं तो एता कनीगा बोलेंगे. एता में कोई लिविंग के लिए क्या बोलेंगे सर? एता ब्रात, एता सिस्टरा, मतलब दिस इज ब्रदर, दिस इज सिस्टर. ओके. ठीक है. बाद में जब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम उनको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे. एता को प्रोनाउन की से रिप्लेस कर देंगे. फिर हम बोलेंगे ओन ब्रात, ही इज ब्रदर, आना सिस्टरा, शी सिस्टर. ठीक है. अभी सिर्फ एता से इसको इंडिकेट करेंगे. ओके सर. ठीक है.
पूछिए सवाल, मौका है आपके पास, उसके बाद सेशन जो है वाइंड अप करने जा रहा हूं मैं। लग रहा है थक गए सब लोग, ब्रेक चाहिए। सर ये वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये बाकी वर्ड्स क्या है सर वो मॉडल में? मॉडल में बाकी के जो वर्ड्स हैं, एक पर अभी मैं सिस्टम आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं समझ जाऊंगा। थोड़ा सा पढ़ सकते हैं मिला के, बोल पाएंगे? तो ये था, थोड़ा मुश्किल है तो सर। व्हील था। कोई और पढ़िए, आप पढ़िए अनुषा। Что это? Это вилка. Что это? Это рубашка. Что это? Это книги и журналы. ठीक है, रुबाश का मतलब शर्ट, कनीगी ई जर्नली बुक्स एंड जर्नल्स, और क्या है व्हील का? Yes sir, вилка. व्हील का इज नाइफ, नहीं व्हील का इज फोक, फोक FORK फोक। ठीक है, और भी कोई वर्ड है उसमें? ठीक है, लोश का इज स्पून, व्हील का इज फोक, एंड नोज, नोज इज नाइफ, नोज इज नाइफ, द एंड्स विद ज, नोज। अगर यही शब्द एक और हमें पता है, नोस, नोस विच एंड्स विद s इज नोज। ठीक है, तो एक अगर लेटर चेंज हो जाता है तो मीनिंग भी चेंज होता है, इसका ध्यान रखना है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोस इज नोज, 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 नोज इज नाइफ, व्हील का, एंड क्या बताया था एक और, लोश का, लोश का इज स्पून, व्हील का इज फोक। ठीक है, और भी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी का जो हमने डायलॉग किया है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने सीखे हैं शुरू में, जैसे कि आप देखेंगे आपका जो अल्फाबेट है उसी में इतने सारे वर्ड्स हैं, उन्हीं को आप चाहें तो यूज कर लीजिए, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसको भी ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अब मैं आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन नाउ। लेट मी थैंक माय कोलीग मिस्टर मिथुन for extending his technical support for successfully running the session online. I would also like to thank our director, COE, Professor Uma Kanjilal, for providing the platform to interact with you all, and of course our Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao, for initiating this unique endeavor to reach out to all the learners across India. We'll be back again with a new session soon, and we will be taking a few more questions and discussing about many more aspects of the Russian language. Sir, 1 minute. Yeah. So we have signed on, and like we registered in Astral online batch, right? But we'll be writing exams that are conducted by NTA of Swayam. So our assignments are those MCQ things that are uploaded week by week in Swayam portal. Yes, yes, exactly. So what about the PDF file that you had sent us? What about the PDF file as assignment that you have sent us? That also we have to complete? See, assignments for online learners is not mandatory. First thing, it is mandatory for distance learner, which is already available on IGNOU website. First thing is clear. Second thing is that your examination will be conducted by NTA, and NTA will decide when. For distance learner, it is already decided by IGNOU. Exam will be conducted by IGNOU itself, for which the exam registration is open on IGNOU website. Thank you. Okay. ठीक है, then दसवीं दानिया, ठीक है, we'll take more questions later on. दसवीं दानिया, दसवीं दानिया।